नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. In today's session, I am going to discuss about anatomy of fallopian tube and ovary. So, fallopian tube is also called uterine tube and funis. It is a paired structure and measuring about 10 centimeter or 4 inch. It is situated in the middle 3/4 of the upper free margin of the broad ligament. Uh, each tube has got two openings. One communicate with the lateral angle of the uterine cavity called uterine opening and measure 1 mm in diameter, and the other is on the lateral end of the tube called pelvic opening or abdominal ostium and measure about 2 mm in diameter. तो ये ट्यूब है, इसके दो ओपनिंग होती है, यूटेराइन ओपनिंग जो कि यूटेरस की तरफ होती है और एब्डोमिनल ओपनिंग जिसको हम पेल्विक ओपनिंग और एब्डोमिनल ओस्टियम भी कहते हैं. इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इंटरस्टिशियल, इस्थेमस, देन एम्पुला एंड देन इन्फंडिबुलम, और ये ब्रॉड लिगामेंट के अपर फ्री मार्जिन में होती है. Now 4 parts. Interstitial part is laying in the uterine wall, measuring 1.25 centimeter in length and 1 mm in diameter. It is very narrow, no peritoneal covering and no other longitudinal muscles are found. Second is isthmus. It is a straight part measuring about 3 to 4 centimeter in length and 2 mm in diameter. Third is ampulla. Ampulla is a widest, tortuous and thin-walled outer part, measure about 5 centimeter. Fourth part is infundibulum. Infundibulum is trumpet-shaped outer and open into the peritoneal cavity by the tubal ostium and measure about 1.25 centimeter in length with a maximum diameter of 6 mm. The abdominal ostium is surrounded by fimbrias, 20 to 25. One of these is longer than the rest and directed toward the ovary, called fimbria ovarica. तो इस डायग्राम में देख सकते हैं ये फिम्ब्रिया है और इसके ये फिम्ब्रिया में से एक फिम्ब्री जो है वो लॉन्गर होती है बाकी की तुलना में. ये इन्फंडिबुलम है, एम्पुला, देन इस्थेमस एंड देन इंटरस्टिशियल पोर्शन. नाउ ट्यूबल फंक्शन. ट्यूब्स जो है वो ओवुलेशन के बाद फिम्ब्रिया के थ्रू ओवम को पिकअप करता है, देन ओवम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है बाय इट्स पेरिस्टाल्टिक और सिलियरी मूवमेंट, और सिक्रीशंस को प्रोडक्शन करता है ताकि ओवा को न्यूट्रिशन मिल सके उसकी जर्नी के दौरान. नाउ एनाटॉमिकल रिलेशन. ट्यूब above bounded by loop of intestine, below by broad ligament and its content. Medially they blend with cornua of the uterus, while laterally they are bounded by the lateral pelvic wall. The ovary lies posteriorly and inferiorly to the fallopian tube at each side. इस डायग्राम में देख सकते हैं ये यूटरस है, ये ब्लैडर, ये ट्यूब्स, लेटरली ट्यूब लेटरल पेल्विक वॉल से बाउंडेड होती है. मीडियली यूटेरस होगा, ब्रॉड लिगामेंट इसके बिलो होगा और कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन इसके अबो होती है, और ओवरी जो है वो ट्यूब के पोस्टीरियरली और इंफीरियरली होती है. नाउ ब्लड सप्लाई. ट्यूब इज सप्लाइड बाय यूटेराइन एंड ओवेरियन आर्टरी, एंड जो विनस ड्रेनेज है वो पेम्पिनिफॉर्म प्लक्सिस में ड्रेन होता है. लिम्फेटिक ड्रेनेज पैराओरेटिक लिम्फ नोड से डायरेक्टली ओवेरियन लिम्फेटिक्स में ड्रेन होता है, और नर्व सप्लाई इज डेराइव्ड फ्रॉम uterine and ovarian nerve, which is sympathetic and parasympathetic fiber, and the tube is very sensitive to handling. Now applied anatomy. Salpingitis is the inflammation of the tube.
Sterility means inability to have a child is called sterility, and the most common cause of sterility in female is tubal blockage, which may be congenital or caused by infection. And patency of tube can be investigated by insufflation test और hysterosalpingiography, जो कि मैं नेक्स्ट सेशंस में आपको पढ़ाऊंगी. ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है ट्यूब में, जिसमें क्या होता है, कभी कभी जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूटेरस तक नहीं पहुंच पाता है और वह यूटेराइन ट्यूब में ही ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. इससे जैसे जैसे एम्ब्रियो इनलार्ज होगा तो ट्यूब रप्चर हो सकती है. ट्यूबेक्टोमी फैमिली प्लानिंग की पर्पस से किया जाने वाला ऑपरेशन है, जिसमें ट्यूब का एक सेगमेंट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है ताकि ओवम फर्दर ट्रांसपोर्ट ना हो सके. Transport of ovum, the initial phase of transport of ovum is chiefly due to tubal contraction. After ovulation, जैसे ही ओवुलेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन डिमिनिश हो जाते हैं, सीलियरी मूवमेंट क्रिएट होते हैं, जिससे जो ओवम है वो ल्यूमन से यूटेरस की तरफ जाता है. Next, anatomy of ovary. The ovary are paired sex glands or gonad in female. It is oval in shape and pinkish gray in color. Intraperitoneal structure laying in the fossa ovarica on the lateral pelvic wall. It measured about 3 into 2 into 1 centimeter. Surface is pearly white and corrugated by the effect of the monthly ovulatory activity. तो ये ओवरी है, ये ट्यूब यूटेरस, और ये ओवेरियन लिगामेंट, और फिम्ब्रिया, ये उफरोन, पैराउफरोन, गार्टनर डक्ट एंड हाइटिड ऑफ मोरगाग्नी, ये सब रेमिनेंट होते हैं. Each ovary present 2 end, tubal and uterine end, 2 border, mesovarium and free posterior, and two surface, medial and lateral surface. यानी ओवरी में 2 एंड होते हैं, एक ट्यूबल एंड होता है और एक यूटेराइन एंड होता है. 2 बॉर्डर होते हैं, मेसोवेरियम और एंटीरियर बॉर्डर एंड फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर, और 2 surfaces, medial and lateral surfaces. Ovary is attached to posterior layer of broad ligament by mesovarium, lateral pelvic wall by the infundibulopelvic ligament, and uterus by the ovarian ligament. इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये यूटरस से ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा होता है, पेल्विक वॉल से इन्फंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट से जुड़ा होता है. नाउ ओवेरियन अटैचमेंट. मेसोवेरियम जो कि एंटीरियर बॉर्डर होता है, a peritoneal fold that suspends the ovary to the back of the broad ligament. The infundibulopelvic ligament suspends the upper pole of the ovary to the lateral pelvic wall and carries the ovarian vessels, nerves and lymphatics. The ovarian ligament attached to the lower pole of the cornua of the uterus. ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट लोअर पोल ऑफ कॉर्नुआ ऑफ यूटेरस से अटैच होता है, इन्फंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट लेटरल पेल्विक वॉल से अटैच होता है, और ये ओवेरियन वेसल, नर्व और लिम्फेटिक्स कैरी करता है. और मेस ओवेरियम पेरिटोनियल फोल्ड होता है जो कि ओवरी पे सस्पेंडेड होता है ब्रॉड लिगामेंट के पीछे. नाउ एनाटॉमिकल रिलेशन. मीडियल सरफेस इज रिलेटेड टू द फिम्ब्रियल पार्ट ऑफ द ट्यूब. ये ओवरी है, इसकी जो मीडियल सरफेस है वो फिम्ब्रियल पार्ट ऑफ ट्यूब से रिलेटेड होती है. लेटरल सरफेस, ओवेरियन फोसा ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल. जो लेटरल सरफेस है वो लेटरल पेल्विक वॉल पर ओवेरियन फोसा से रिलेटेड होती है. एंटीरियर बॉर्डर ऑल्सो कॉल्ड मेस ओवेरियम, which is a fold of peritoneum from the posterior lip of the broad ligament, and posterior border is tubal ampulla.
The fossa superiorly contain external iliac vein, posteriorly related with ureter and internal iliac vessel, and laterally related with the peritoneum separating the obturator vessels and nerve. Now blood supply and lymphatics. ओवेरियन आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, पेम्पेनिफॉर्म में वेन्स ड्रेन होती है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज पैराओरेटिक लिम्फ नोड के थ्रू ओवेरियन वेसल्स में होता है। ये जो ओवरीज है वो इनसेंसिटिव होती है एक्सेप्ट टू स्क्वीजिंग ऑन पीवी एग्जामिनेशन। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व के T10 और T11 फाइबर के थ्रू पैराओरेटिक प्लेक्सिस के थ्रू ओवेरियन वेसल्स जो है वो नर्व सप्लाई होती है। नाउ अप्लाइड एनाटॉमी। जो ओवरी है वो ओवुलेशन के डिटर्मिनेशन में हेल्प करती हैं। In case of sterility, ovulation can be determined indirectly by following tests: premenstrual endometrial biopsy, or basal body temperature, premenstrual vaginal smear, cervical mucus test or Fern test, and ovulation by USG। तो ये सभी जो टेस्ट है वो हम इनफर्टिलिटी में पढ़ेंगे। ओवरी का प्रोलेप्स हो सकता है। Ovary are frequently displaced to the pouch of Douglas where they can be palpated per vaginal examination, और इससे डिस्पेरोनिया होगा और रिट्रोवर्टेड यूटेरस भी हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट हो सकती हैं जिसमें ओवेरियन फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है वो अरेस्ट हो जाता है, जिससे फर्दर मैचुरेशन नहीं होगा और स्मॉल ओवेरियन सिस्ट बन सकती हैं। कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में जो बनती हैं उसकी लार्ज सिस्ट बन सकती हैं और लार्ज ओवेरियन सिस्ट भी बन सकती है। और मल्टीपल स्मॉल थिका ल्यूटिन सिस्ट भी ओवरी में हो सकती है। तो जो थिका ल्यूटिन सिस्ट है उसको हम पीसीओएस में देखते हैं और इसको स्टेन-लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं। ओवरी में कार्सिनोमा कॉमन है जो कि 15% में मिलता है, और गायनेकोलॉजिकल कैंसर, टोटल गायनेकोलॉजिकल कैंसर का 20% ओवेरियन कार्सिनोमा होता है। ओवरी समटाइम प्लूरिपोटेंट सेल्स भी कंटेन करती हैं जो कि टेरेटोमा बना सकती हैं, और ओवरीज जो है वो कॉमन साइट होती है एंडोमेट्रियोसिस की। जो एंडोमेट्रियल सिस्ट है ओवरी में उसको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। So thank you for listening me. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any query, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.